Welcome to Sharma's Gurukul. Today we are going to talk about ammonia. Ammonia का discussion हम लोग करने वाले हैं. Let us go for the introductory part of it. Molecular formula of ammonia is NH3. Nitrogen is the central atom which is attached to the three hydrogen atoms with a single covalent bonds, है ना. उसके बाद में अगर उसका molecular mass की बात करें तो nitrogen has an atomic mass 14 plus 3 hydrogen atom, that means 3 atomic mass, that is equals to 17 units, and Weber density is half of that of the molecular mass, that's why it is 8.5. okay, that means it is lighter than air, है ना. एयर की कितनी होती है 14.4, तो उसके हिसाब से ये क्या हो गई, कम हो गई. सो दिस ammonia gas is lighter than air. Then its nature is basic in nature. HCl gas के साथ hydrogen chloride is acidic in nature, ammonia is basic in nature, and it is poisonous. It causes irritation in the eyes and irritation in throat, respiratory system में भी वो problem create करता है. So it is poisonous in nature. Then solubility is highly soluble in water like HCl, and its common name is alkaline air. And the structure, if you will observe here, कि यहाँ पे देखना ये 3 हाइड्रोजन है, the 3 of them are attached or joined with the nitrogen with 3 single covalent bonds, and there is a lone pair of nitrogen electron over here. यहाँ पे एक और लोन पेयर अवेलेबल है. तो इस तरीके से ये अमोनिया का स्ट्रक्चर हो गया है. अगर इफ यू रिमेम्बर वी हैव स्टडीड अबाउट द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उसका जो पढ़ा है अपन ने, उसमें क्या पढ़ा है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन जो होता है उसके 3 अलग अलग एंगल पे 3 हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं, एंड लोन पेयर इज अबव, इट हैज अ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, एंड बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्रीज, है ना. इतना बॉन्ड एंगल उसका जो है वो बनता है. अपन ने वो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर इसका स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है. दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ द अमोनिया molecule. Now we'll go for the preparation of ammonia gas. So here laboratory general methods of preparation of ammonia. For that what we need to take is ammonium salt. Ammonium salts are the resource of ammonia. तो यहाँ पे मैंने जो example लिया that is ammonium chloride. Ammonium chloride is treated. They are to be treated with strong alkalis. Weak alkalis के साथ काम नहीं होता है. We have to take strong alkalis like NaOH, KOH, CaOH twice. So here I have taken up example of CaOH twice. यहाँ पे लिया, and then what is from ammonia NH4. जैसे एसिड वाले लेसन में हमने पढ़ी हुई ये चीज की CO3 में से CO2 निकालो, वैसे यहाँ भी यही चीज सिखाऊंगी मैं कि NH4 है तो उसमें से NH3 निकालो, then 1H is remaining, that will combine with the OH to form water molecule. इस तरीके से प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बनते हैं, एंड देन फाइनली सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस इज फॉर्म. नाउ सी हियर अमोनियम सल्फेट, देयर इज अनदर अमोनियम सॉल्ट ट्रीटेड विद NaOH. यू ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. लेट अस सी हाउ मच यू कैन डू विद. तो ये अगर आप रिएक्ट करेंगे NaOH और अमोनियम सल्फेट, तो जैसे मैंने बताया था कि NH4 है तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे NH3, और as there are 2 NH4 ions, that's why 2 ammonia will be released. water निकालना है हमें, तो डेफिनेटली हर NH में से एक OH मॉलिक्यूल जो है वो HH निकलने वाला है. so 2 OH are required, so 2 water molecule will be released, and sodium will combine with sulfate to form Na2SO4. लेकिन हमें Na2SO4 नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम रिएक्शन स्लो करवाएंगे, तो दैट विल फॉर्म NaHSO4 एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म, है ना. 1 वाटर मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो गया. सो नाउ दिस आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस. बट व्हाइल डूइंग सो वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड, दैट अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बिकॉज इट फॉर्म्स एन एक्सप्लोसिव होता है वो नेचर के अंदर, एंड सॉरी हियर इट इज नाइट्रस ऑक्साइड इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद वाटर, है ना. तो इस तरीके से दैट इज द रीजन व्हाई वी डोंट यूज अमोनियम नाइट्रेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी laboratory preparation of ammonia. So in this laboratory preparation of ammonia, if you will observe, there is a round bottom flask, but it is kept tilted, है ना. tilted round bottom flask है यहाँ पे, and then there is one delivery tube which is connected to the drying tower which is filled with quicklime, that is calcium oxide, and then again one more delivery tube is there which is introduced into the jar, gas jar के अंदर जिसे introduce किया हुआ है. And now
विल स्टार्ट विद द रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्टेंट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या चाहिए, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ इन दिस केस एक्चुअली इफ यू विल सी द बैलेंस्ड इक्वेशन, अगर आप बैलेंस इक्वेशन इसका देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 2NH4OH reacts with CaOH twice, that means 2:1 रेशियो में हमें अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होता है। लेकिन एक्चुअली जो हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए जो रेशियो रखते हैं दैट इज 2:3, मतलब अमोनिया का जो रेशियो है वो अमोनियम क्लोराइड का दैट इज लेस एंड क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मोर। दिस इज डन so as to avoid the sublimation of ammonium chloride because it is a sublimate substance। ठीक है, इसके बाद में जो वाटर मॉलिक्यूल एज अ बाई प्रोडक्ट बन रहा है दैट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स, वो वेपर्स के फॉर्म में ऊपर आएगा, तो वो वेपर्स भी क्या होंगे, दे विल आल्सो गो अलोंग विद द अमोनिया प्रोड्यूस्ड। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाता है, apparatus is kept tilted, और टिल्ट करके क्या करते हैं, वाटर वेपर्स गो अप, they strike on the walls of the container and get precipitated। तो अगर आप उसका जो नेक वाला पोर्शन है, if you will observe, slowly their water will get accumulated over there, but maximum of it will be trapped in that groundwater flask only। The ammonia gas which is coming out, it will contain some quantity of moisture which will be removed with the help of the drying agent, that is quicklime। यहाँ पे भी यही इश्यू है भैया, हम दूसरा भी drying agent यूज कर सकते थे but we have not used as they react with the ammonia to form different products, अलग अलग प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, तो इसलिए हम लोग दूसरा कोई भी ड्राइंग एजेंट यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। एंड देन द ड्राई अमोनिया गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। देखना HCl वाली केस में हमने क्या बोला था, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर बिकॉज HCl वाज हेवियर देन एयर, बट नाउ वी आर गोइंग टू यूज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर बिकॉज अमोनिया इज लाइटर देन द एयर, है ना। इसके जो ड्राइंग एजेंट है इसमें अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते तो अमोनियम सल्फेट बन जाता, अगर फास्फोरस पेंटॉक्साइड यूज करते तो अमोनियम फॉस्फेट वुड हैव बीन फॉर्म, कैल्शियम क्लोराइड अगर हम यूज करते तो उसका एक एडिशन प्रोडक्ट बनता CaCl2.8H2O, 8 अमोनिया मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से अलग अलग मेथड्स जो दूसरे यूज करते हैं और अलग लेबोरेटरी प्रिपरेशन में, वो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ओनली वन क्विक लाइन दैट मींस CaO कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी यूज्ड एज ए ड्राइंग एजेंट। उसके यूज करने के पीछे दो रीजन है, एक तो इट डू नॉट रिएक्ट विद दैट एंड इट इटसेल्फ इज बेसिक। क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, वो खुद ही बेसिक है। तो बेस जनरली डू नॉट रिएक्ट विद बेस, है ना, बेस के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्या हो गया कि हमने ये कलेक्ट कर लिया, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई लेबोरेटरी प्रिपरेशन की। प्रिकॉशंस हमें जो लेने हैं इसमें वो ये होगा कि भाई रिएक्टेंट शुड बी फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में लेने चाहिए ताकि सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा हो जाए। कैल्शियम ऑक्साइड शुड बी टेकन इन एक्सेस सो दैट ऑल द मॉइस्चर वुड बी रिमूव्ड easily and the round bottom flask should be kept tilted so as to control the passage of water molecule into the delivery tube। तो ये सारे precautions हमें लेने हैं। ऐसा एक और एक laboratory preparation है with the metal nitrides that is quite simple than this one। इसके अलावा ये जो simple process है इसके अंदर इन्होंने क्या है, simply nitrides are treated with water, बाकी जो rest of the arrangement is same, rest of the arrangement उसका same होता है। Different metal nitrides are treated with water to form the respective hydroxide and ammonia gases। evolved method of collection same ही रहेगा, downward displacement of air will be used। Okay, so these are all the laboratory methods of preparation of ammonia। Now we'll go for the very special method which is known as Haber's process। So here we are going to discuss about the manufacture of ammonia। अमोनिया का मैन्युफैक्चर मतलब क्या हो गया, लार्ज स्केल प्रिपरेशन हो गया, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, जिसमें लार्ज क्वांटिटी में अमोनिया बनाएंगे। तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, है ना। दीज आर टेकन अप इन द रेशियो ऑफ 1:3 होगा, हाइड्रोजन इज 2, नाइट्रोजन 3:1 होता है। तो यहाँ पे 1:3 रेशियो में अपन ने लिया। सो बोथ द कंपोनेंट आर मिक्स टुगेदर एंड दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए कंप्रेसर, है ना। सॉरी नॉट कंप्रेसर, कंप्रेसर में तो पहले डालेंगे, बट कंप्रेसर यहाँ पे छोटा लगा हुआ है। कंप्रेसर में डाल करके अराउंड 250 atm प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है एंड द मिक्सचर इज इंट्रोड्यूस इन ए कैटालिटिक चेंबर। दिस इज कॉल्ड एज ए कैटालिटिक चेंबर। ठीक है, इफ यू विल सी द डायग्राम यू कैन सी इट प्रॉपर्ली। आगे डायग्राम भी दे रखा है। कैटालिटिक चेंबर है, इसके अंदर अपन ने क्या डाला, Fe डाला, फाइनली डिवाइडेड आयन which act as a catalyst। इसके बाद में हम डालेंगे मोलिब्डेनम,
that will act as a promoter. Promoter क्या होगा? What is promoter? Promoter one which activates catalyst. What is catalyst? Which activate reaction. तो इस तरीके से ये promoter हो गया. उसके बाद में ये जो reaction है अमोनिया के production की, that is an exothermic reaction, but still initial heating of around 500 degrees Celsius is needed, which is provided. है ना? ऐसा करने के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है that is ammonia NH3, but यहाँ पे इशू होता है, लगभग यील्ड जो होता है वो 6 to 8% होता है, मतलब बहुत ही कम हो गया. तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि कूलेंट्स में ऐड करेंगे. कूलेंट्स में ऐड करके क्या हुआ कि ये अमोनिया जो है वो लिक्विफाई होकर के नीचे कलेक्ट हो जाएगा, लिक्विड अमोनिया. ठीक है, लेकिन जो अनरिएक्टेड गैसेस है, मतलब कौन सी? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये जो है दोनों नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अनरिएक्टेड, दे विल बी सर्कुलेटेड बैक इन द कंप्रेसर. फिर से वो सर्कुलेट कर दी जाती हैं सो दैट दे कैन बी रीयूज्ड. तो इस तरीके से नाइट्रोजन कहाँ से आया? नाइट्रोजन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिक्विफाइड एयर. उसका रिसोर्स क्या है? लिक्विफाइड एयर. हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉश प्रोसेस. बॉश प्रोसेस से लिया जाता है. रेशियो क्या है? 1:3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन. अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोलो तो 3:1 हो गया. कंप्रेसर में डालेंगे टू reduce the intermolecular spaces. 250 atm का प्रेशर डाला है. Then catalytic chamber in which finely divided ion is there, which will act as a catalyst. Molybdenum is there, which will act as a promoter. Initial heating लगता है, बाद में heating नहीं किया जाता because reaction itself is a exothermic reaction. अमोनिया का जो production है that is very less, 6 to 8% है, जिसको coolant के थ्रू पास करेंगे. तो अमोनिया जो heavier है molecule that will get liquefied and other two gases will be circulated back. है ना? अब इसके अगर रिएक्शन की बात करें अपन तो क्या है? नाइट्रोजन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया will give you 2 hydrogen will give you 2 molecules of ammonia. So this is the production of ammonia. This is manufacture of ammonia, Haber's process. है ना? इसके बाद में अगर अपन देखें तो बात करते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की. तो फिजिकल प्रॉपर्टी अमोनिया की देखने जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या? कलर क्या है? इट इज ए कलरलेस गैस एंड इट हैज ए स्पेशल इरिटेटिंग ओडर, जिसको नॉर्मली हम लोग अमोनिकल ओडर भी बोलते हैं. है ना? अमोनिकल ओडर इज आल्सो देयर. तो इरिटेटिंग ओडर होता है इसका एंड इट हैज ए हाई सोल्यूबिलिटी इन वाटर. वाटर के अंदर बहुत ज्यादा, हर रेशियो के अंदर वो डिसॉल्व हो जाता है टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इसके बाद में डेंसिटी की अगर बात करें तो जस्ट नाउ बिफोर दिस सेक्शन वी हैव सीन दैट इट इज लाइटर देन एयर. है ना? उसके बाद में लिक्विफैक्शन हम कर सकते हैं उसका by applying pressure and reducing the temperature. Then we will talk that this ammonia, ये जो अमोनिया है, this is basic in nature. Why basic? When it is dissolved in water it forms NH4OH, जो कि actually क्या होता है? NH4 plus ions and OH minus ions. तो ये OH ions जो रिलीज करता है वो क्या होता है? बेसिक इन नेचर. तो ये बेस का बिहेवियर जो है इसका शो करता है, हालांकि ये वीक बेस होता है. एक फाउंटेन एक्सपेरिमेंट हमने देखा था इन केस ऑफ HCl. इन द सेम वे here there is again a fountain experiment in which we will take a round bottom flask which is filled with ammonia, and now this time what we are going to do, as it is basic in nature, our solution, litmus solution would be red litmus solution. red litmus solution हम लेंगे and as the same situation will go on, क्या क्या होने वाला है कि we will inject some quantity of water in that round bottom flask and so water is introduced in that round bottom flask through that syringe, and what is observed that ammonia has been highly soluble in water. Some of the ammonia get dissolved in that water, and due to which there is a pressure difference created in the jar and the atmospheric pressure, because of which that red litmus solution runs up and then comes out. As it comes from the nozzle, उसके जो टिप पे से वो जब बाहर आता है, it turns blue. Why? Because ammonia itself is basic in nature. So what are the two conclusions from it? One, its basic nature, and second is its solubility. That it is highly soluble in water and it is basic in nature. Reaction with acids. Now this gas ammonia is being basic in nature. It will react with acid to form salt NH4Cl. ये अपन ने HCl वाले लेसन में भी सेम रिएक्शन देखी हुई है कि अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट इज फॉर्म. अगर सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे, मान लो NH3,
प्लस H2SO4, तो क्या बनेगा अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, है ना। तो इस तरीके से अमोनियम सल्फेट नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा अमोनियम नाइट्रेट विल बी फॉर्म। देन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ वैसे तो अगर यूं देखा जाए तो अमोनिया इज नाइदर कंबस्टिबल नॉट सपोर्टर ऑफ combustion, but still it burns in the jet of oxygen to form nitrogen and water molecule. Ammonia react with oxygen to form nitrogen and H2O. तो इस तरीके से ये बर्न करता है। अगर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन अपन करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मतलब डायरेक्ट ऑक्सीजन इस तरीके से बर्निंग नहीं करना है, सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज टू बी प्रोवाइडेड। उसकी मदद से अगर हम लोग इस तरीके का ऑक्सीडेशन करते हैं, लाइक मान लो अमोनिया ट्रीटेड विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, प्लैटिनम की मदद से अगर अपन करते हैं एट अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन रहा है नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर विल बी फॉर्म। लेकिन ये क्या है, ये इतना स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है। इट फाइनली अगेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो फाइनली क्या बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज फॉर्म बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। और अगर आप डायरेक्ट कंबशन करेंगे, बर्न करेंगे तो क्या बनेगा नाइट्रोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल वुड बी फॉर्म, है ना। देन अमोनिया हैज ए रिड्यूसिंग कैरेक्टर, है ना, उसके अंदर कैसा है रिड्यूसिंग बिहेवियर है व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन। अब इसमें क्लोरीन वाले में क्या एक्चुअली दो अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अगर हमने अमोनिया एक्सेस लिया तो रिएक्शन अलग होगी, और अगर हमने क्लोरीन एक्सेस में लिया है तो रिएक्शन अलग होगी। लेट अस सी, मान लो NH3 प्लस 3Cl2, 3 अगर क्लोरीन हमने लिए हैं मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल फॉर्म NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एंड HCl विल बी फॉर्म। ये कब है, जब क्लोरीन इज इन एक्सेस, अमोनिया की क्वांटिटी आपकी क्या है कम है। लेकिन अगर आपने दूसरा मतलब दूसरे तरीके से की, मतलब आपने अगर अमोनिया एक्सेस में ले लिया, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया ट्रीटेड विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, इस सिचुएशन में कर लिया तो क्या बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस नाइट्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। तो इस तरीके से रिएक्शन अलग अलग होगी। ये एक्सेस ऑफ क्लोरीन में है एंड दिस रिएक्शन इज इन एक्सेस ऑफ अमोनिया। तो ये दो अलग अलग कंडीशन के अंदर अलग अलग टाइप की रिएक्शन होगी, है ना। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद अमोनिया, क्योंकि बेसिक इन नेचर है, दोनों ही बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड अमोनिया इटसेल्फ इज ए बेसिक कंपाउंड। बट जो बहुत कम रिएक्टिव मेटल है लाइक कॉपर, है ना, उनके जैसे मेटल्स के साथ, उनके ऑक्साइड के साथ अगर अपन अमोनिया को ट्रीट करें तो copper will be extracted. That means what will happen, reduction of copper can be done. So here it will again act as a reducing agent. अमोनिया को यहाँ पे अगर ट्रीट किया तो कॉपर विल बी रेज्ड। इसका कलर क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर होता है। एंड व्हाट अबाउट कॉपर, इट इज ए रेडिश ब्राउन मेटल, सो कॉपर इज फॉर्म्ड एंड देन व्हाट इज फॉर्म्ड, वाटर एंड नाइट्रोजन विल बी फॉर्म्ड, H2O प्लस N2। तो इस तरीके से ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। देन टेस्ट फॉर अमोनिया, हाउ टू आइडेंटिफाई। एक तो अपन ने वो HCl वाली कर रखी कि रिएक्टेड विद HCl का रॉड, कॉन्सेंट्रेटेड HCl का रॉड अगर आप लेकर आएंगे इन कांटेक्ट विद अमोनिया गैस, व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल बी फॉर्म। तो ये अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट फ्यूम क्या इंडिकेट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ अमोनिया इन द गिवन कंटेनर। इसके अलावा एक और रिएजेंट है विच इज कॉल्ड एज नेस्लर्स रिएजेंट। तो ये नेस्लर रिएजेंट जो होता है दैट इज K2HgI4, K2HgI4, this reacts with the ammonia to give brown color precipitate. ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होते हैं, है ना। टर्मरिक पेपर जो होता है या पाउडर जो होता है उसे ब्राउन टर्न करने का काम अमोनिया करेगा बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर। देन अगर ब्लूइश व्हाइट पीपीटी आ जाएंगे, अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में उसको बबल करेंगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट आएगा, व्हाइटिश, व्हाइट और ब्लू ऐसा मिक्स कलर आएगा। और अगर बहुत ज्यादा अमोनिया बबल कर दिया तो डीप ब्लू सॉल्यूशन, इंक का जो कलर होता है उस टाइप का डीप ब्लू सॉल्यूशन विल बी ऑब्टेन्ड। सो दीज आर ऑल द टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनिया। बट इन लेबोरेटरी व्हेन वी यूज अमोनिया, इट्स नॉट यूज्ड एज ए गैसियस फॉर्म, इट वी यूज इट इन अ लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड फॉर्म में वो लिक्विड अमोनिया इज नॉट अवेलेबल। व्हाट इज अवेलेबल इज
aqueous solution of ammonia, so that is ammonia plus water H2O, you will get NH4OH. तो लेबोरेटरी में हमें क्या मिलता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. नाउ हाउ टू प्रिपेयर अमोनियम हाइड्रोक्साइड? Same method as if we have dealt with in case of HCl. What we have done, the gas which is delivered by the delivery tube, that delivery tube is connected with the funnel. Funnel से उसे connect किया जाता है and funnel is introduced in a trough containing water. Water वाले trough में उसको डाला जाता है. Then what happens? Because it is highly soluble in water, it get dissolves in water to form ammonium hydroxide. है ना, इस तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनाया जाता है. फनल अरेंजमेंट, व्हाट इज द यूज ऑफ द फनल अरेंजमेंट? अगेन बिकॉज ऑफ दिस, ये भी इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है, बट इफ यू विल सी द फनल द सरफेस एरिया इज मोर, सो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया एंड ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स द बैक सक्शन. बैक सक्शन क्या होता है कि बिकॉज अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल, अगर उसका प्रोडक्शन का रेट कम पड़ गया तो दिस वाटर विल रन अप एंड इट विल कवर अप दिस पोर्शन. तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये इतना ज़्यादा पोर्शन जो है वाटर से कवर हो गया, लेकिन इतना भी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है कि वो बैक जा करके जो रिएक्टिंग मिक्सचर है उसमें मिक्स हो जाए. उसकी वजह से क्या होता है, बैक सेक्शन भी रुक गया और दूसरा क्या हुआ कि सरफेस एरिया इज ऑल्सो इंक्रीज फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया इन वाटर. सो दीज टू आर अरेंजमेंट्स व्हिच आर डन फॉर द preparation of ammonium hydroxide. Now we will talk about the chemical properties of ammonium hydroxide. केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है NH4OH, it contains actually ammonium ions and OH minus. that means ये OH minus है, मतलब this is basic in nature, ये basic nature का कंपाउंड है. इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो रेड लिटमस विल टर्न ब्लू, है ना. मिथाइल ऑरेंज जो है इट विल टर्न ऑरेंज टू येलो इन कलर एंड फिनोल्फ्थालीन जो है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पिंक कलरेशन. तो ये, और टर्मरिक पेपर अगर है तो येलो टू ब्राउन हो जाएगा. सो दीज आर ऑल चेंजेस ब्रॉट इन द इंडिकेटर्स which help to identify that the given substance is basic in nature. ठीक है. इसके बाद में अगर एसिड से रिएक्शन की बात करें तो हमें पता है कि दिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर. सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म? क्या बनेगा उससे? जस्ट थिंक अबाउट एंड ट्राई टू आंसर इट. बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म क्या? सॉल्ट एंड वाटर. सो NH4OH प्लस मान लो हम HCl कर रहे हैं तो ये OH यहाँ से बेस से और H फ्रॉम एसिड विल फॉर्म H2O. देन व्हाट इज रिमेनिंग? NH4Cl. NH4Cl सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म, है ना. इसी के साथ आप HNO3 से ट्रीट करोगे तो सल्फेट सॉल्ट बनेगा, सॉरी नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा. सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करोगे तो सल्फेट सॉल्ट बनेगा, है ना. सो दीज आर ऑल डिफरेंट salts and water which is prepared as a byproduct. Then there are some special reactions of some soluble salts with ammonium hydroxide, like suppose lead nitrate PbNO3 twice, it react with NH4OH. तो यहाँ पे क्या होता है, lead जो है it combines with the OH group, so it forms PbOH twice, है ना. तो यहाँ पे ये 2 हो गया एंड अमोनियम नाइट्रेट, 2 अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सॉल्ट बन जाता है, अमोनियम नाइट्रेट इज फॉर्म. तो इस तरीके के जो मेटालिक सॉल्ट्स है व्हिच आर वाटर सोल्यूबल, व्हेनेवर दे आर ट्रीटेड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे फॉर्म द रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड. कॉपर का अगर कोई सॉल्ट है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. अगर फेरस सॉल्ट है तो FeOH ट्वाइस बनेगा. अगर फेरिक सॉल्ट है तो FeOH थ्राइस बनेगा. इस तरीके से वो अपने अपने क्या बनाते हैं, प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं. दीज आर प्रेसिपिटेट. लेड का प्रेसिपिटेट व्हाइट होता है, कॉपर का जो होता है CuOH ट्वाइस दैट इज ब्लू इन कलर. देन अगर Fe2 प्लस है तो उसका जो होता है वो डर्टी ग्रीन होता है. देन इसके बाद में अगर Fe3 प्लस है आपका तो रेडिश ब्राउन होता है. तो डिफरेंट मेटल आयंस फॉर्म डिफरेंट हाइड्रोक्साइड्स which are different colors and these hydroxides are water insoluble. तो प्रेसिपिटेट बनाते हैं. लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जो सॉल्ट्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, एक्सेस में सोल्यूबल होते हैं. जैसे कॉपर का हाइड्रोक्साइड लाइट ब्लू कलर का पीपीटी तो बना लिया, बट इफ यू विल ऐड एक्सेस ऑफ NH4OH व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है
है ना, टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट विच इज ए डीप ब्लू सॉल्यूशन, तो वो क्या हो गया, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया। तो डिसॉल्व प्रेसिपिटेट इज देयर, ब्लू कलर का सॉल्यूशन वो बना लेता है इस तरीके से। नॉर्मली जो होता है कि नाइट्रेट जो होता है ना, अमोनियम सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसके अंदर अगर सिल्वर का बनाएंगे अपन तो सिल्वर सॉल्ट जो है दैट विल रिएक्ट विद, अपन ने HCl वाला लेसन में पढ़ी हुई है कि HCl में अगर सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करें तो सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म। दिस सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ अमोनियम सॉल्यूशन, अमोनियम सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है एंड डायमाइन सिल्वर क्लोराइड ऐसा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है विच इज सोल्यूबल इन द सॉल्यूशन, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग रिएक्शंस हो गई। उसकी यूजेस की अगर हम बात करें इसके, तो इट हैज लार्ज स्केल यूज, बहुत सारी यूटिलिटी उसकी, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में ओसवाल प्रोसेस के अंदर हम लोग उसको यूज करते हैं। देन मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सो मेनी यूजेस आर देयर, you can go through it. So this is all about the ammonium hydroxide, which is a aqueous solution of ammonia. So now what you are supposed to do is complete the exercise. Okay, thank you.